A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, let's start our science lecture. In previous lecture, we were studying about metals and non-metals, right? So, in that time, I have explained about different properties of metals and non-metals. We can divide properties into two categories: physical properties and chemical properties, right? So we were discussing about physical property of metal and non-metal. याद है सबको कि भूल गए? एक बार रिकॉल करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो कहाँ से हमने स्टार्ट किया था? सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने देखा था कि हार्ड होती है कि कम हार्ड होते हैं, ठीक है। तो हमें पता चला था मेटल्स आर हार्ड, नॉन मेटल्स आर नॉट वेरी हार्ड, यू कैन से सॉफ्ट ऑल्सो एंड नॉट वेरी हार्ड. सेकेंड थिंग, लस्ट्रस, मेटल्स आर लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, डल होते हैं, लस्ट्रस नहीं होते. उसके बाद स्टार्ट किया था हमने फिजिकल प्रॉपर्टी. तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज मेलेबिलिटी. तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेलेबिलिटी, सबने लर्न की. मैंने सबको बोला था कि हर एक जो भी आ रहा है नया वर्ड, जो भी प्रॉपर्टी आ रही है, उसकी डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए. तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेलेबिलिटी? द प्रोसेस ऑफ मेटल्स by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. Okay, an example and the property and metal are called malleable. Metals are malleable and non-metals are non-malleable. So this is the property of metal. And if I want to give you example of malleability, then you can say sheets of aluminum foil, silver foil, etc. Coal is malleable or not? No, coal is not malleable because coal is not metal. Okay. Pencil lead is also not a metal, so it is also not malleable. So after malleable क्या बताया था मैंने आपको? Good conductor of heat and electricity. You can say here that metals are good conductor of heat and electricity, and non-metals are poor conductor of heat and electricity. So this is also a property of metal. Next property of metals, metals are ductile and the property is ductility. What is ductility? The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility, correct? And give some example. If I want to give some then we can say what different types of wire of copper, aluminium. Okay, next is sonorous. What is sonorous? Metals are sonorous. So what is the meaning of sonorous? Ringing sound. Metals produce ringing sound, and this quality, this property of metal is called sonorous. Metals are sonorous, non-metals are non-sonorous. Okay, so after this we can say that metals are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity, while non-metals are soft, dull, non-malleable, non-ductile, non-sonorous and poor conductors of heat and electricity. So this is the physical property of metals and non-metals. तो जिस जो भी ये प्रॉपर्टी रखते हैं, जो भी मटेरियल ये वाली प्रॉपर्टी रखते हैं, हार्ड, लस्ट्रस, मैलेबल, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं, ठीक है. And if you want to give some examples of metal, then you can say iron, copper, aluminium, calcium, magnesium. And if you want to give some examples of non-metals, then you can say coal, sulfur, they are soft and dull, ठीक है. And different so many gases are also included in नॉन मेटल्स, ठीक है. उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम, अभी इतना पढ़ो, इतना आपको लर्न रखना है. तो ये क्या होता है? ब्रेक हो जाते हैं, हार्ड नहीं होते, हैमर से मारोगे ब्रेक हो जाएंगे, सोनोरस नहीं होते और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. तो इस टाइप के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं. सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, लाइक आई सेड कि गैसेस जो होती है वो भी नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है. तो कौन कौन सी आ गई? कुछ एग्जाम्पल जो दिया, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, ठीक है.
अब एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि इन सभी प्रॉपर्टी में, जैसे कि लस्ट्रस बोला, हार्ड बोला, ठीक है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोला कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और एक और चीज़ है मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, ठीक है। बस सब में क्या होता है कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिलता है, कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है। लाइक देखो यहाँ लिखा बॉक्स में, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। लाइक आई सेड मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, मेटल हार्ड होते हैं, बट सोडियम एंड पोटेशियम भी मेटल है, बट ये एक्सेप्शन है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं देन यू कैन कट विद अ नाइफ। सोडियम एंड पोटेशियम जो है उसे आप नाइफ से कट कर सकते हो, बट दे आर मेटल, तो इसे क्या बोलेंगे हम, एक्सेप्शन। आप ये नहीं बोलेंगे कि ये मेटल नहीं है कि मैडम आपने तो पढ़ा है मेटल्स हार्ड होते हैं और ये तो सॉफ्ट है, तो ये एक्सेप्शन है। बहुत सारे एक्सेप्शन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। हम जनरल टॉक कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं कि जनरली प्रॉपर्टी क्या होती है, मोस्टली मेटल्स कैसे होते हैं, ठीक है। So it is very important to learn that sodium and potassium are metals, but they are soft. कितने सॉफ्ट होते हैं, दैट इट कैन कट विथ अ नाइफ, ठीक है। सेकेंड वो देखो एक्सेप्शन देखो कि जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर, okay, like iron, copper, aluminum, all are solid at room temperature. But mercury is also a metal, but mercury is the only metal which is found in liquid state in room temperature. कहाँ यूज़ होता है मरकरी, कहाँ देखा है आपने मरकरी, इन थर्मामीटर, इन थर्मामीटर मरकरी इज यूज। सो मरकरी इज ऑल्सो अ मेटल बट इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, सो इट इज एक्सेप्शन, बट दिस इज मेटल, ठीक है, लिक्विड स्टेट में मिलता है बट ये मेटल है, तो ये भी आपको याद रखना है, दीज आर एक्सेप्शन। लाइक मेटल्स आर लस्ट्रस, ठीक है, बहुत शाइनी होते हैं, एंड नॉन मेटल्स आर डल। बट डायमंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन इज नॉन मेटल, लेकिन डायमंड कितना लस्ट्रस होता है, शाइन करता है, हार्ड होता है। मेटल्स आर हार्ड बट नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, बट डायमंड इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, बट इट इज हार्ड एज वेल एज वेरी शाइनी, सो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन, इट इज़ नॉट रिटन हियर, बट आपको बता रही हूँ मैं, ये भी एक एक्सेप्शन है। डायमंड जो है लस्ट्रस होता है, बहुत शाइन करता है, एंड हार्ड भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि डायमंड बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी देखी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ओके। नाउ come this point, chemical properties of metals and non metals. As I told you कि किसी के बारे में आपको पता करना है, किसी की प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता करना है, तो आपको फिजिकल एंड केमिकल बोथ प्रॉपर्टी यू शुड नो। तो आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टी वी विल स्टडी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, हम रिएक्शन करा के देखते हैं, पर्टिकुलर मेटल है या पर्टिकुलर मटेरियल वो ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्ट करता है, या फिर उसे हम किसी और एसिड में डालते हैं तो क्या बनता है, कौन सी गैस रिलीज होती है, सारे मेटल्स क्या एक जैसा रिएक्शन देते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है कि मेटल्स पर्टिकुलर एसिड या ऑक्सीजन या दूसरी चीज़ों के साथ कर रहे हैं जो रिएक्शन, क्या नॉन मेटल भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जनरली क्या करते हैं, लेट्स सी, ओके। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, You are familiar with the phenomena of rusting of iron. You all know about जंग, क्या रस्ट, क्या होता है आयरन की चीज़ों में, कॉपर की चीज़ों में जंग लग जाती है, दैट इज़ रस्ट। जो हम उसमें पूजा में जो हम उसके तांबे के बर्तन यूज़ करते हैं तो पहले मम्मी कहती है उसे साफ़ करती है, उसमें एक ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है तो उसे साफ़ करते हैं हम। सेम आयरन का सबने देखा है, आयरन में जंग लग जाती है, दिस फिनोमिना इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। तो रस्टिंग यू ऑल नो, व्हाट इज़ दिस, कैसे हो जाती है रस्टिंग, कैसे वो लेयर बन जाती है, ये सोचने वाली बात है। तो याद करो कि रस्ट कैसे बनता है, हमने 7th में भी पढ़ी थी एक्टिविटी, क्या कि मैग्नीशियम, क्या होता है मैग्नीशियम, इट इज़ अ मेटल। व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन इन द एयर, एयर तो चाहिए आपको, ऑक्सीजन में ही कम्बशन होता है, ऑक्सीजन में बर्निंग होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वो एक्टिविटी याद करो जब हम पढ़ रहे थे। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो आपको क्या मिलता है, बाद में एक ऐश मिलती है, ठीक है, वो ऐश क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है, ठीक है। तो यही चीज़ मेटल में होती है, यही चीज़ आयरन में होती है, क्या होता है, देखो यहाँ पर आयरन प्लस ऑक्सीजन, आपको पता है
कि बर्निंग, कंबशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से आई? एटमॉस्फेयर से आई। वाटर कहाँ से आया? जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, करेक्ट। तो आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर, वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, जब ये मिलते हैं कैसे लगती है जंग? हम ऐसे आयरन को छोड़ देते हैं, हम लोहे के बर्तन अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। अगर कोई चीज़ बन रही है आयरन की, कोई ब्रिज है वहाँ आयरन यूज़ किए जाते हैं, या फिर हमारे जो व्हीकल है उसमें आयरन यूज़ किया जाता है कि नहीं किया जाता? मोटर वगैरह में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है आयरन। तो क्या करते हैं उसके बाद हम पेंट कर देते हैं, क्यों? ऑयलिंग करते हैं। हम साइकिल चलाते हैं तो कभी कभी चेन उतर जाती है ना साइकिल की, तो उतर के सही करते हैं तो हमारे हाथों में ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ लग जाता है, वो क्या होता है? वो ग्रीस होता है, ठीक है। वो क्यों लगाया जाता है? एक तो वो स्मूथली चले, फ्रिक्शन कम करने के लिए, दूसरा क्या होता है? जंग ना लगे। और जहाँ पर बहुत चांसेस होते हैं उसे हम कलर पेंट कर देते हैं। क्यों करते हैं भाई? इसलिए करते हैं कि ऑक्सीजन का कांटेक्ट रोक दे, अदरवाइज क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा और रस्टिंग हो जाएगी। और अक्सर लोहे की जो भी मोटर वगैरह आपके घरों के बाहर रखी होती है उसमें रस्टिंग हो गई होती है, उसके लिए आपको उसकी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, और सेम प्रोसेस है, देखना अभी आंसर बताऊंगी। सेम प्रोसेस है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब हम बर्निंग कर रहे हैं देखो वहाँ मॉइस्चर नहीं आएगा, ठीक है। पहला वाला रस्टिंग हो रही है जो ऐसे ही हो रही है एटमॉस्फेयर में, दूसरा मैग्नीशियम का हम बर्निंग कर रहे हैं। बर्निंग में हमें क्या वाटर की ज़रूरत नहीं है, मतलब बर्न कर रहे हैं हम। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन मिक्स हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही आयरन ने जब रिएक्ट किया ऑक्सीजन और वाटर से तो क्या बन गया? क्या बन जाता है? आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरस बोलते हैं ना आयरन को, तो यहाँ आयरन ऑक्साइड की जगह हम फेरिक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आप आयरन ऑक्साइड भी बोलेंगे तो भी अभी चलेगा, और फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, फेरस ऑक्साइड बोलेंगे तो भी चलेगा, अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो वो क्या होता है? रस्टिंग होती है, ठीक है। अब देखते हैं रस्ट जो मिली हमें, जो रस्ट मिली, जो आयरन में जंग लग गई, उसे थोड़ा सा ऐसे रिमूव कर लेंगे सैंड पेपर से, या फिर ऐसे खुरच के हम इकट्ठा कर लेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ऐसे ही ले सकते हैं, लास्ट में ऐश बचती है उसे इकट्ठा कर लेंगे। तो अब हम चेक करते हैं कि रस्ट का नेचर कैसा होता है। नेचर इट मीन्स कैसी होती है? एसिडिक होती है कि बेसिक होती है, ये हमने पढ़ा है ना। कैसे चेक करते हैं हम एसिड और बेस को? 7th में पढ़ा था, यही हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी 7 में, सब याद रहना चाहिए, कुछ भी भूलना नहीं है। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो रस्ट जिसमें लगी हो उसमें से हम क्या करेंगे? रस्ट को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। अब कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। देन कभी किया भी होगा शायद आपने, जब आप रस्ट को मिक्स करेंगे वाटर में, वो उसमें डिजॉल्व नहीं होगी, वो ऊपर ऊपर तैरेगी, ठीक है, सस्पेंडेड रहेगी। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। अब शेक कर दो उसको, सस्पेंशन को। नाउ टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब ये लिटमस पेपर क्या है? दिस ऑल्सो यू नो, जब हम लोग 7th में जब आपने पढ़ा था, देन लिटमस पेपर के बारे में आपको बताया था। When we were studying about acid and bases, then we had studied about litmus paper also. What is litmus paper? This is indicator. With the help of litmus paper we can identify whether the particular solution or sample is acid or base. Okay, so litmus is indicator and it is of two type, red litmus paper and ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। इफ एसिड लिक्विड इज सैंपल इज एसिड, देन क्या होगा? ब्लू जो होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसका यही चीज़ें हम चेक करेंगे, ओके। सो देखो, अब हम जब उसमें डिप करेंगे, यहाँ देखो हमने जब डिप किया उसको बना लिया हमने सस्पेंशन, रेड सस्पेंशन बना लिया, और उसे फिर वॉच क्लास में लिया है और रेड लिटमस पेपर उसमें डिप किया है, ठीक है। रस्ट ऐसी है, बना लिया, टेस्ट कर रहे हैं हम, तो क्या होगा? सोच के बताओ। रेड लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू हो जाता है इफ सॉल्यूशन इज बेसिक। इफ सॉल्यूशन इज एसिडिक तो क्या होता है? ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर,
Does copper also get rusted? I have seen a greenish deposit on the surface of copper vessel. Yes, of course, आप सबने देखा है. At starting also I was telling that जो हम copper के utensils use करते हैं उसमें green color की layer जमा जाती है. That is rust of copper, है ना, जो उसको फिर साफ करके हम use करते हैं. तो same process होती है when a copper vessel is exposed to moist air for long. It acquires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide. हाइड्रोक्साइड मतलब क्या हुआ, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब क्योंकि वो मॉइस्ट एयर मतलब H2O है ना, तो वही बन गया आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3. ये बन जाता है. यहाँ पर रिएक्शन भी दी हुई है 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2. ये सारी मॉइस्ट एयर में सारी चीज़ें हैं. तो जब वो रिएक्शन होती है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनता है. वो ग्रीन कलर की जो लेयर है वो जमा हो जाती है. ठीक है. जब हम मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था तो जो ऐश हमने इकट्ठी की थी, ठीक है, उसके बाद वो हमने एक्टिविटी की थी व्हेन वी डिजोल्व दैट ऐश इन द वाटर एंड अगेन सेम प्रोसेस इफ वी टेस्ट दैट सैंपल विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर. तो क्या होगा, सॉल्यूशन बेसिक है कि एसिडिक है, आपने कैसे टेस्ट किया था. तो हमने देखा था कि जब आप रेड लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डिप करोगे तो क्या होगा, वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू में कुछ नहीं होगा. ठीक है, रेड ब्लू हो जाएगा, ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा. इट मीन्स सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है. तो ये ध्यान रखना है आपको. क्या प्रॉपर्टी पता चली हमें यहाँ पर कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर. ठीक है. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑक्साइड ऑफ मेटल. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कैसे बनते हैं, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन then oxide of metals are formed and oxide of metals are basic in nature. In general metallic oxides are basic in nature. This is the first chemical property of metal. ठीक है, समझ में आया. तो ये थी प्रॉपर्टी मेटल की. अब देखते हैं कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है जब हम उसका रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, वो भी देखना पड़ेगा. ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, ये इसे कैसे करेंगे. सबसे पहले दिस एक्टिविटी टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास. कोई घर पे करने की कोशिश नहीं करेगा. ठीक है, ये बहुत डेंजरस है और इसे कभी भी ऐसे अकेले ट्राई नहीं करना. ये सब स्कूल में की जाती हैं. ठीक है, अभी आप इसे समझ लो. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट. तो हमने अब क्या लेना है, सल्फ़र लेना है. एक उसमें केमिस्ट्री लैब में हम यूज़ करते हैं. देखो यहाँ पर है, ऐसी सी होती है. अगर नहीं है तो आप ऐसे इस कैप से बना सकते हो, ये वाली. ठीक है, ये हमने क्यों ऐसे रखा है, क्योंकि हमें टच नहीं करना है, हमें ऊपर से बस इसको ऐसे कर देना है. इस टाइप का बनाना है. ये ऐसी होती है, नहीं है तो हम कैप से भी बना सकते हैं इसको. ठीक है, क्या करना है, सल्फ़र लेना है और उसे हीट करना है. ठीक है, अगर अवेलेबल दिया भी हुआ है, अगर नहीं है ऐसी वाली स्पून तो मेटलिक कैप का यूज़ कर सकते हो किसी भी बॉटल की. उसमें वायर को रैप करो, लंबा सा होना चाहिए और उसे वैसा शेप दे दो. ठीक है, उसमें हमने लिया और उसे क्या करना है, गर्म करना है. अब जैसे ये स्टार्ट होगा, गर्म होना स्टार्ट होगा, बर्निंग होना स्टार्ट होगा सल्फ़र. ठीक है, एज सुन एज सल्फ़र स्टार्ट्स बर्निंग, तुरंत क्या करेंगे हम, स्पून को एक गैस जार या ग्लास टम्बलर, देखो अगर ऐसा है तो ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ये तो लैब में होता है, तो हम ऐसा ग्लास ले लेंगे, ग्लास टम्बलर, उसमें डालेंगे. ठीक है, उसमें एकदम से ट्रांसफ़र कर देंगे और उसे कवर कर देंगे कि लिड को बिल्कुल लिड ऐसे लगाओ कि गैस जो बनेगी वो बाहर ना निकल पाए. ये सब प्रॉपर हमके पहले से प्रिपरेशन करनी होती है. ठीक है, तो सबसे पहले ऐसी स्पून बना लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसे हीट करेंगे सल्फ़र को. उसमें 1 स्पूनफुल पूरा सल्फ़र ले लेंगे, देन उसे हीट करेंगे. जब बर्निंग होने लग जाएंगी तुरंत उसे क्या करेंगे, गैस जार या ग्लास टम्बलर में उसे हम डाल देंगे और ऐसा कवर करेंगे कि जो भी गैस उसमें बन रही है वो बाहर ना निकले. एंड देन रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम. ठीक है, अब रिमूव कर लिया, देन क्या करना है हमें, एड अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वाटर इन टू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड. थोड़ा सा पानी डाल दिया और हटा लिया उसको, लिड को हटा लिया.
और उसे शेक करो अच्छे से, जो भी है उसे शेक करो। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन इज़ एसिडिक और बेसिक। लिटमस पेपर सेम वही पेपर हम यूज़ करेंगे और उसे यूज देखो या उसने ट्रांसफ़र कर लिया वॉच क्लास में, और फिर वापस हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर लेंगे। अब क्या चेक कर रहे हैं हम, क्या बन गया है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स बन गए हैं। उसका हम नेचर टेस्ट कर रहे हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। दोनों पेपर ले लेंगे, लिटमस पेपर ब्लू एंड रेड, और फिर उसमें डिप करके देखेंगे, ठीक है, कि कौन चेंज करता है, वो एसिडिक है कि बेसिक। तो क्या होगा जब आप करोगे ना ऐसे, तो ये जो है, ये जो पेपर है पहला वाला क्या हुआ था, वो बेसिक इन नेचर आया था, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर है वो चेंज हो जाएगा रेड में, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि वो एसिड है। जनरली क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ टेबल दी हुई है, मेटल्स एंड नॉन मेटल इन एसिड एंड बेसिस, ऐसी टेबल बनानी है आपको। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नेम ऑफ द बेस, जो बेस के नेम है वो, उसमें कौन सा और मेटल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बेसिक हो गया। क्या है ये, कैल्शियम का ऑक्साइड है, और कैसे नेचर का होता है वो, जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक होते हैं। तो मेटल कौन सा हुआ, कैल्शियम, ठीक है। अब हमें यहाँ इधर क्या लिखना है, नेम ऑफ एसिड। तो इसमें पहले देख लो आप नॉन मेटल्स में क्या हुआ। अब देखो यहाँ पर द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। जब हमने बर्निंग की सल्फर की तो क्या हुआ, सल्फर और ऑक्सीजन में रिएक्शन हुआ और क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर में हमने डिजोल्व करी, जब हमने उसको पानी मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बना, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो कैसे लिखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, बहुत सारे एसिड का नाम याद करो, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे एसिड होते हैं। और बेसिस क्या होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस क्या होते हैं, वो ऑक्साइड ऑफ मेटल होते हैं, और एसिड जो होते हैं वो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स होते हैं। तो उनके नेम ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। नेम ऑफ द बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मेटल कौन सा यूज़ हुआ, कैल्शियम। नेम ऑफ द एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, नॉन मेटल है सल्फर। ऐसे ही आपको 4-5 बेस और 4-5 एसिड के नाम लिखने हैं, और उसमें जो भी मेटल और नॉन मेटल यूज़ हो रहा है उसके नाम लिखने हैं, करेक्ट। तो आपको ये टेबल बना के रखनी है और ये फिल करके रखना है, दिस इज़ योर होमवर्क। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, गुड बाय।